بھی ہم سے جیتا نہیں ہے. ہیلو. السلام علیکم. والسلام علی من اتبع الہدا. کون صاحب بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. کون صاحب بول رہے ہیں؟ بول رہا ہوں امیر ہے امیر بول رہا ہوں. امیر کہاں سے؟ بھوپال. بھوپال. کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں حنفی مسلک سے. حنفی. اس وقت پہچان کیا ہے تمہاری؟ حنفی تو دیوبندی بھی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، بریلوی بھی کہلاتے ہیں. تعلق دیوبند. دیوبند. ہاں. تو آپ جو یہ میرے پرسنل پر گالی گلوچ کر کے بھیج رہے ہو، تو اگر ایسے بات کر لو تو کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کی اصلاح ہو جائے، میری اصلاح ہو جائے. بھائی یہ بتاؤ مجھے کہاں سے ثابت ہے کہ یہ کام کرنا اس طرح کر کے کہاں سے ثابت ہے؟ ہاں. تو آپ کو اس سے شکوہ ہے جو یہ ڈانس کرتے ہیں اور جو ناچ گانے کرتے ہیں، یا میلاد منانے سے ہی شکوہ ہے؟ نہیں مجھے میلاد سے شکوہ نہیں. مجھے میلاد سے شکوہ نہیں. اچھا. تو یہ جو ڈانس کرتے ہیں یہ تو اس کے تو ہم بھی خلاف ہیں. ہماری کسی کتاب میں آپ لکھا دکھا دیں گے کہ کسی کتاب میں لکھا ہو کہ اس طریقے سے میلاد مناؤ تو ڈانس کرو، اس میں ناچ گانے کرو؟ میں یہ بول رہا ہوں ہمارے کسی عالم کی کسی کتاب میں ایسا دکھلا دو گے آپ کہ جس میں کہ ہمارے عالم نے یہ کہا ہو کہ میلاد مصطفیٰ جب مناؤ، جلوس نکالو تو اس میں ڈانس کرو، ناچ گانے کرو. یہ تو حرام ہے. یہ تو میرے آقا اعلی حضرت ساجل بریلوی نے ڈانس کرنا، ناچ گانا کرنا، ڈھول تاشا بجانا بالکل حرام لکھا ہے. تو اس کے تو ہم بھی خلاف ہیں. لیکن آپ یہ بتائیں مجھے کہ تو آپ جو خلاف ہیں وہ کس بات کے ہیں؟ مطلب ڈانس کے، ناچ گانے کے خلاف ہیں یا میلاد منانے کے خلاف ہیں؟ میں ناچ گانے کے خلاف. ناچ گانے کے خلاف. تو ٹھیک ہے، اس میں تو تمہارا کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے تو ہم بھی خلاف ہیں. مگر یہ بتائیے کہ آپ نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم منایا؟ آپ نے منایا؟ نہیں منایا. میں نے نہیں منایا. کیوں نہیں منایا؟ نہیں منایا. کیوں نہیں منایا؟ اگر یہ ناچ گانے کر رہے ہیں، کوئی بھی ظالم کر رہا ہے. ہاں. جتانا ضروری تھوڑی نہیں بھائی. کیا 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 جتانا ضروری؟ جتانا ضروری ہے کیا؟ کیا دکھانا کیا ضروری جتانا؟ ہے کیا؟ ہاں. اللہ رب العزت خود اپنے محبوب سنو ہاں، اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ دیگر انبیاء السلام کی بھی میلاد کا ذکر کر رہا ہے قرآن مقدس میں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ والضحیٰ آیت نمبر 11 میں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ حَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو سب سے بڑی نعمت دی ہے، وہ ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت کیا چیز ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم. تو ان کی پیدائش کا اگر ہم چرچا کریں گے، یہ ہم خوشی منائیں گے، تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ اور اگر قباحت ہے تو آپ حکم لگائیے کہ جس آدمی نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا ہو اور اسے جائز قرار دیا ہو تو اس پہ حکم کیا لگے گا؟ جی مسئلہ آتا ہے نا. جی فرمائیں. غم کا بھی دن. غم کہاں سے لکھا ہوا ہے کہ غم کا دن ہے؟ یہ وفات کا بھی دن اسی دن کو کہا جاتا ہے. ثابت کرو، دکھاؤ کون سی کتاب میں لکھا ہوا کہ وفات کا دن ہے. بتاؤ ہمارے نبی کے دن وفات ہوئے تھے، کون سی تاریخ کو ہوئے تھے وفات ہوئے تھے؟ ہاں تو لکھا ہوا دکھاؤ، کہاں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا دکھاؤ. بتاؤ، آپ بتاؤ کس دن ہو. ہاں میں بتاتا ہوں. دیکھیے ہاں تمہارے اشرف علی تھانوی صاحب ملفوظات حکیم الامت میں لکھ رہے ہیں، جلد نمبر 8 پہ، صفحہ نمبر 262 پہ لکھتے ہیں یہ کہ مشہور تاریخ وصال 12 ربیع الاول غلط ہے. کیا لکھ رہے ہیں؟ مشہور تاریخ وصال 12 ربیع الاول غلط ہے. ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ربیع الاول کی 12 غلط مشہور ہے. 9 تاریخ کو حضور نے حج کیا اور جمعے کا دن تھا اور اسی سال وفات ہوئی اور دوشنبہ کو ہوئی. یہ مقدمات سب متواتر اور قطعی ہیں. اب یہ بات بتائیے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 12 تاریخ ہے؟ تمہارے حکیم الامت جو اشرف علی تھانوی صاحب وہ تو منع کر رہے ہیں 12 تاریخ نہیں ہے. پہلی بات. اب دوسری بات سنیے عامر صاحب دوسری بات سنیے. ملینہ نہیں مانتے آپ تھانوی صاحب کو؟ میں کہہ رہا ہوں تھانوی صاحب کو نہیں مانتے ہیں آپ؟ علماء کرام کی کئی سب علماء کرام کا لگے کبھی کسی میں 9 ربیع الاول کی پیدائش کا وقت آتا ہے، کسی مبارک آتا ہے. ہاں تو یہ تو بالکل صاف انکار کر رہے ہیں تمہارے اشرف علی تھانوی تو کہ 12 تاریخ نہیں ہے 12 وفات حضور کی.
अब ये तुम्हारे हकीम उल उम्मत में आते हैं, सबसे बड़े चोटी के आलिम है तुम्हारे अशरफ अली थानवी साहब, इन्हें आप हकीम उल उम्मत मानते हो तो इनकी बात नहीं मानोगे? ठीक है, मैं देख करके बताता हूँ। अब सुनो, दूसरी बात सुनो, दूसरी बात और सुनो। देखो बात करो, या तो आपकी इस्लाह हो या मेरी इस्लाह हो। दूसरी बात ये कि आप आमिर रजा, कितनी उम्र है आपकी? 26 साल की उम्र है। आप काफी अक्लमंद हो, हुनरमंद हो। ये बताओ कि पहले विलादत होती है या पहले वफात होती है? पहले विलादत। अच्छा, वफात को आप क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब मरना मानने हैं उनका? बिल्कुल मर गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा मानते हैं आप? भाई वफात पैदा हो गया। वफात तो ये तो कुरान का फैसला है। आपको मौत आई है लेकिन आने के लिए, ये तो तुम्हारे इलियास हिम्मन का फतवा है। सुनो आमिर साहब सुनिए, मैं तुम्हें बता दूं, आइंदा के लिए मेरे पर्सनल पर कोई गाली गलौज मत करना, पहले अपने अकाबिरों की सुन लो। तुम्हारे इलियास हिम्मन का फतवा है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहे कि नबी मर गए या मुर्दा हैं तो वो काफिर है। अभी बताओ, इलियास हिम्मन को जानते नहीं जानते हो? पाकिस्तान वाला जो है, उसने ममातियों पर फतवा लगाया है कि ममाती मानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा, तो उसने फतवा लगाया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा कहे वो काफिर है। अब ये बात बतलाओ, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले बच्चे की विलादत है, तो अब मौत का गम तो वो मनाएंगे, और गम के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया है कि 3 दिन से ज्यादा गम नहीं मनाना चाहिए। 3 दिन के लिए गम मनाया जाता है सिर्फ। अब गम तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा गए तो सहाबा किराम ने मना लिया जो मनाना 3 दिन का। अब हम गम थोड़ी मनाएंगे, हम तो जब आने की खुशी मनाएंगे, क्योंकि पहले विलादत होती है। आमिर रजा साहब कह चुका है, वो कौन करेगा? क्या कह चुका है? बोलो। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। तो ये किसने मना किया कि नमाज, रोजा, ज़कात, हज, मज़ा कर? कोई हमारे आलिम ने मना किया? किसी ने? कोई सिर्फ टोपी लगा करके आशिक रसूल बन क्या है, वो ज्यादा हो जाएगा क्या? देखिए, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा तो वो गुनाहगार है, नमाज फर्ज है। ज़कात नहीं दे रहा तो गुनाहगार है, फर्ज है। हज नहीं कर रहा गुनाहगार है। ये तुमने कैसे कह दिया कि हमारे आलिम क्यों नहीं करते मेहनत? किताबें देखो और तकरीरें सुनो हमारे आलिम की। तुम तकरीर सुनते कब हो? तुमने हसद अपने दिल में बसा लिया है, सिर्फ बुग़्ज़ है तुम्हारे दिल में, और वो उसका मेहनत करते हैं। किताबों का मुताला करो, किताबें सुनो। देवंदी काफिर है। अच्छा, आप नमाज पढ़ते हो? आप नमाज पढ़ते हो? काफिर हम नहीं कहते काफिर, हम नहीं कहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कह दिया नबी ने। ये तो नबी ने कह दिया पहले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी थी और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। समझे ना? और जिसमें एक ही जन्नती होगा, सिर्फ 72 दोस्त की होंगे। तो नबी तो 72 दोस्त की कह रहे हैं, 72 काफिर कह रहे हैं। 72 में से एक जाएगा, कौन जाएगा वो तो हम नहीं जानते हैं। वो जाएगा जो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी और मेरे सहाबा की इत्तबा करेगा। अब सहाबा की इत्तबा कौन कर रहा है? तुम ये कहते हो कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तुम ये कहते हो नबी को कोई इख्तियार नहीं, तुम ये कहते हो कि नबी का जैसा ही। सुनो, मैं तुम्हारे पास सारे हवाले भेजूंगा, तुम्हारे पास सारे हवाले भेजूंगा। तुम्हारे दीन के लिए क्या करा? मेरी बात सुनो। दीन के लिए ये किया, दीन के लिए उन्होंने जंगें लड़ी, अपनी जान को जान नहीं समझा, उन्होंने अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च किया। दुनिया में छिड़ गए। आप लोग क्या करते हैं? सिर्फ दुरूद और सलाम पढ़ने से थोड़ी ना हो जाएगा भाई। आप सुनो ना, हो जाएगा। दरूद सलाम तो है, नमाज में हम दुरूद नहीं पढ़ते। अब खड़े तुमने जो ये एतराज किया है ढोल ताशे का, मेरे जो सवाल का जताए पढ़ते हैं। सुनो, हम कुछ अमल ऐसे होते हैं कि जताए जाते हैं। जैसे एक जंगे तबूक के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जनाब सुनो, कई मौका ऐसा था कि जताने का आता। आपने इरशाद फरमाया कि कौन है जो अल्लाह की राह में खर्च करे, मतलब इस्लाम के लिए मुसलमानों के माल की जरूरत है। तो वहाँ जो माल लोग ला रहे थे तो वहाँ जताया जा रहा था। फारूक आजम से पूछा था आपने कि आप घर क्या छोड़ के आए हो? तो उन्होंने कहा था कि आधा आपकी बारगाह में ले आया, आधा घर छोड़ आया हूँ। फिर सिद्दीक अकबर से पूछा था। कई मौका ऐसा था कि जताया भी जाता। अभी तुम्हारे अशरफ अली थानवी एक उर्दू जगह लिख रहे हैं, सुनो, बिल इख्तिलाफ, ये इबादत कौन सी जताई जाती है? बिल इख्तिलाफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत और उसका कामिल तरीन फजल है। इसलिए इस आया करीमा से बदलालत नस ये भी मुराद लिया जा सकता है कि यहाँ रहमत और फजल से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी विलादत पर अल्लाह ताला खुशी मनाने का हुक्म दे रहे हैं। तुम कैसे कह रहे हो? मैं नहीं पढ़ता हूँ।
नहीं, तुमने अभी ये जो कहा कि हमने नहीं मनाया, क्यों नहीं मनाया तुमने? जब तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो तो तुम्हारे नबी की पैदाइश का दिन है और सबसे बड़ी नेमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए है, तो तुमने क्यों नहीं मनाया? तुम तो ऐसे मनाते जैसे मनाने का तरीका साहब इकराम ने बताया। मनाया था। हाँ, मनाया साहबी ने भी। वो भी साबित करूं? कौन से साहब? हाँ साबित करूं? हाँ, मान लोगे आज से तुम? मनाने लगोगे? हाँ सर, हाँ, सुनो। ये हदीस मुबारक है सुनन निसाई हदीस नंबर 5432 से करो है। बड़ी हदीस की किताब से करो। ये छोटी हदीस है? हाँ, ये छोटी किताब है। छोटी किताब, बड़ी किताब से। जानते हो तुम छोटी किताब है ये? हाँ, बड़ी किताब से करो। तुम्हें मालूम है ये छोटी किताब है? हाँ मुझे मालूम है छोटी किताब, बड़ी किताब। सुनन निसाई छोटी किताब है जो इमाम बुखारी ने लिखी हो। सिया सित्ता की कितनी हदीसें हैं? कितनी किताबें हैं सिया सित्ता में? इब्न माजा से है। अरे सिया सित्ता में कितनी किताबें हैं हदीस की? मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ी किताबों से है आपके पास। अरे तुम्हारे घर से साबित कर दूं? तुम्हारे घर से साबित कर दूं? हाँ कर दो। लो, तुम्हारे ये अशरफ अली थानवी किताब है मजालिस हकीमुल उम्मत। इसमें ये महफिल मिलाद का एक बाब बन रहा है। इसमें फरमा रहे हैं, ये फरमाया कि इसके मुतालिक पहले मेरे ख्याल था कि इस महफिल का असल का काम जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबके नजदीक खैर सआदत और मुस्ताब ही है, अलबत्ता इसमें जो मुनकिरात और गलत रस्में शामिल कर दी गई हैं उनके इजाले की कोशिश करनी चाहिए। असल अमर महफिल मुस्तहब को तर्क नहीं करना चाहिए। बोलो क्या कह रहे हैं ये? और ये दरअसल हमारे हजरत हाजी साहब कुद्दसा सिर्रहू का मसलक था। हजरत की अगायत, शफकत व इनायत और मोहब्बत के सबब मेरा भी ज़ौक़ यही था और यही आमतौर पर सूफिया किराम का मसलक है। और हजरत मौलाना रूमी का शेर भी इस्तेमाल कर रही है। अब दूसरी जगह से और मैं तुम्हें बताऊं, लो, तुम्हारे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मकी को जानते हो? हैं? तुम्हारे जो अकाबिरों के पीर हैं वो अपनी किताब इमदादुल मुश्ताक में क्या कह रहे हैं? फरमाया हमारे उलमा मौलिद शरीफ में बहुत तनाज़ा करते हैं, ताहम उलमा जवाज की तरफ भी गए हैं। जब सूरत जवाज की मौजूद है फिर क्यों ऐसा तशद्दुद करते हैं? और हमारे वास्ते इत्तिबा हरमैन काफी है, लिहाजा वक्त क़याम के एतकाद का तबाला न करना चाहिए। अगर एहतमाल तशरीफ आवरी का किया जाए तो मुज़ायक़ा नहीं, क्योंकि आलम मुहक्किक मुफीद बजुबान। हाँ हेलो। अरे आमिर साहब, फोन काट के क्यों भाग गए? अब अपने घर के हवाले क्यों नहीं सुन रहे? हवाले सुनो अब ईद मिलादुल नबी के ताल्लुक से। तो फोन काट के भाग गए। यहाँ तो बहुत निगाह मार रहे थे आप। सुनो एक मिनट बात सुनो। अरे नमाज पढ़ते हो तुम? अरे नमाज पढ़ते हो? हाँ अल्लाह का शुक्र है, पांचों वक्त। हाँ, नमाज में बताओ कितने फर्ज होते हैं? नमाज में फर्ज कितने हैं? नमाज में मालूम नहीं है, आप ही बता दीजिए। देखिए सामईन हजरात, ये है देवबंदी जो का मिलाद के ऊपर एतराज कर रहा था मिलादुल नबी के जुलूस पर, और इसे ये तक मालूम नहीं है कि नमाज में फर्ज कितने होते हैं। वैसे कहते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं। इन जाहिलों की क्या नमाज होती होगी जब इन्हें ये मालूम नहीं कि नमाज में फर्ज कितने हैं, तो अदायगी कैसे करते होंगे ये कि सजा तैब करना कब वाजिब होगा? अब तुम अपने घर के जो हवाले सुन के भाग गए। तुम बोलो, अच्छा बोलो 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 आमिर बोलो, सही बोले बोलो फर्ज मालूम ही नहीं हम लोगों को, चल दिए नमाज। जब तुम्हें मालूम नहीं तो तुमने इतनी हिम्मत कैसे की कि तुम मुझे आगे पर्सनल पर गाली बक रहे थे मुझे? अब तुम अपने घर के हवाले क्यों नहीं सुन रहे? अपने घर के हवाले सुनो कि तुम्हारे अकाबिरों ने ईद मिलादुल नबी को क्या माना है। इन पर कुफर का फतवा लगाओ, अब इन्हें काफिर कहोगे? क्यों आमिर साहब भाग गए क्या? आमिर यहाँ, हेलो, आमिर साहब भाग गए फिर